Lifelines of national economy. In this particular chapter, we will be first reading that what are lifelines of national economy. Normally, when we have अभी तक हमने जो geography में पढ़ा था, तो we have studied the sectors को हमने divide कर रखा. हम सबसे पहले लेकर चलते हैं resources and development. Then हमने agriculture, water, it's omitted in here but it's there. Agriculture, water, then minerals. Then हमने पढ़ा secondary sector that is manufacturing. The third one we are studying is about the tertiary sector, but we also call it as lifelines. Now the question comes why we are reading it in the geography. ये आपको बताता है geography. It means the one which is correlating the geographical areas. तो ये बताता है अलग-अलग जगहों को जब हम जोड़ देते हैं, when we are developing them, when we are interrelating them, so then the geographical locations, the geographical fields and the transport or the communication system of a country also helps in the overall development. In other way, हमारे last year का I do not know इस साल आपके था या नहीं, last year we had interrelations of subjects. Interrelations of subjects यानी कि हम सोशल स्टडीज के अंदर सोशल साइंस में बोलती हूँ बट मेनी ऑफ द पेरेंट्स दे यू नो जब मैं उन्हें बोलती ना मैं सोशल साइंस पढ़ाती हूँ तो दे टेक इट दैट आई एम टीचिंग साइंस बट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई आल्सो इट इज कॉल्ड एज सोशल साइंस. इन सोशल साइंस वी आर रीडिंग इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मतलब हमारा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, what are the political system that we are following, what are the geographical relations and how it helps in the economy. So these are all correlated. सबसे पहले we will be studying what are importances of the lifelines. Lifelines basically are called for all the tertiary sectors, whether we call it as banking, insurance, transport, then after communication. But here in your 10th standard we are going to study only about transport, communication and tourism. The very first is how lifelines, these lifelines are important. The second is distinguishing them on the basis. सबसे पहला हमारा ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट में हमारा आ जाता है लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. लैंड में आपके आ जाएगा रोडवेज एंड देन रेलवेज एंड पाइपलाइंस. वी हैव 3 लैंड ट्रांसपोर्ट. वाटरवेज में आपका नेशनल हाईवेज एंड पोर्ट्स एंड इन द एयर इट्स इंपॉर्टेंट इन डिफरेंट एयरवेज. ठीक है. Then communication. Communication में we will be studying about the postal communication, that is आपका through the post. Then आपका media यानी कि mass media, newspapers and this दूरदर्शन, TV and IT यानी कि mobiles, telephones, इनके importance. Last but not the least आपका जो आ जाता है वो है tourism and how tourism sector is important for the development also for the betterment of our country. कई जगह पर हम लोग ऐसे एरियाज को छोड़ देते हैं which may be having tourism significance. So how if we are improving our geographical locations by improving our land, our transport, our communication and tourism, it will be helpful in the overall development. ठीक है. तो लेट अस सबसे पहले हम आते हैं towards importances.
employment in the tertiary sector that will help the country's development in a better manner. These two are called as the index of development. इनको भी हम लोग जो है जब हम फैक्टर्स लेते हैं कंट्री के, जैसे जब हम बात करते हैं हेल्थ, एजुकेशन, तो ये भी आपके वो इंडेक्स है कि कंट्री का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कितना अच्छा है। जब हम पब्लिक सर्विसेज कहते हैं तो ट्रांसपोर्ट उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इफ यू गो टू एनी better place or what we call as the developed area, वहां आप देखोगे the transport system is well linked. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपका बहुत आसान है, but if you come to the countries which are developing or underdeveloped, आपको ये प्रॉब्लम जरूर आएगी that the transport system or the communication system is not developed. Like in our country still we are lagging behind 5G. 4G भी हमारे यहाँ पर बहुत बाद में आया था, है ना? तो that means हमारा कहीं ना कहीं I'll stop. I'll tell you what will come. Now, if we look into the सबसे पहले ये है कि why it is important, because if the transport is well connected, जो हमारे पहले दो सेक्टर्स है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरी, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर आना जो है आसान हो जाता है। Moreover, it is also contributing to the generation of employment. People who are working in these areas are also contributing to the economic revenue, and it is a good transport system which helps in the what we call as the international trade. आपका इंटरनेशनल ट्रेड तभी अच्छा हो सकता है जब आपके पास अच्छा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम हो, that which we have read in globalization chapter, that it is because of the transport, because of the communication that today globalization has a better perspective. So this also helps in the process of what we call as globalization. Now on the basis, ये तो हम लोगों ने थर्ड या फोर्थ में पढ़ा था, that we divide the transport into land transport, then आपका water transport and air transport. Now in your this section what we will read is road transport सबसे पहला। इसमें एक क्वेश्चन जो है which is of 5 marks. Roadways always have an edge over railways. Roadways always have an edge over railways. ये क्वेश्चन बहुत मतलब repeated है, मैं tell you. Means the importance of roadways. The importance of roadways. This is on the very first page. It is written. Yes. See, सबसे पहला तो it is roadways जो कि आपके ट्रांसवर्स यानी कि ऊबड़ खाबड़ कैसा भी आपका जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है वहां पर यू कैन गो फॉर द रोड्स, आप वहां पर यू कैन ले द रोड्स। सेकेंडली इन द टेरेन रीजन, जैसे आपके माउंटेन्स है, रोडवेज का जो है बनाना आसान होता है। थर्ड इज इवन इफ यू आर यूजिंग द वाटरवेज और एयरवेज, जो रोडवेज है दे आर द वन व्हिच प्रोवाइड द फीडर सर्विस, यानी कि अगर आपका यहाँ पर जो है यू आर हैविंग द इंडस्ट्री, तो आपकी इंडस्ट्री का जो सामान होगा वो पोर्ट तक जाएगा कैसे, आपका सामान पोर्ट तक जाएगा कैसे? डेफिनेटली सबसे पहले तो यू नीड अ रोडवे। आपको सामान जो है चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे वो आपका वाटर पोर्ट हो, वहां तक जाने के लिए भी यू नीड द रोड्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रोडवेज जो होते हैं दे आर चीपर देन रेलवेज इन टर्म्स ऑफ लेइंग। अगर रेलवेज का देखा जाए तो उनके लिए आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। And it also connects the smallest units of your country. आप शायद कहीं पर रिवर ना हो तो एक जगह से दूसरी जगह जाने को, एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करने के लिए like our zones towards the region, हमारी region towards the cities, इनको कनेक्ट करता है आपका रोडवेज। तो रोडवेज always have an edge over railways का मतलब होता है
roadways are more important than railways, right? On the basis of the capacity मतलब उसमें कितना ट्रैफिक हम ले सकते हैं, the roadways have been described or you can say classified into, सबसे पहला आपका आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपका जो है अभी नया प्रोजेक्ट है, नया मतलब इट हैज बीन स्टार्टेड जस्ट इयर्स बैक। ये अभी जो है आपके सारे मेजर मेट्रो सिटीज को तो कनेक्ट कर रहा है, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता एंड चेन्नई। मतलब अगर आप ऐसे चलते हो तो दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से आपका चेन्नई और आपका जो है कोलकाता, यू कैन गो। एंड इट इज आल्सो द क्लस्टर ऑफ नेशनल हाईवेज, मतलब इन्हीं के अंदर आपके जो है नेशनल हाईवेज भी आ जाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा चौड़ा किया गया है। दे हैव बीन बिल्ट, मतलब कि उनको ब्रॉड किया गया है। और जो इसका नॉर्दर्न कॉरिडोर है, सबसे ऊपर जो इसका मतलब सबसे ऊपर, दैट इज आपका कश्मीर और नीचे आपका कन्याकुमारी। यहाँ पर आपका सिलचर दैट इज इन द ईस्ट एंड यहाँ आपका पोरबंदर। मतलब ये तो इनके 4 मेजर पॉइंट हैं, बट ये आपके सारे मेट्रो सिटीज जो है उनको भी कनेक्ट करते हैं। It is National Highway Authority of India जो है, it is responsible for the maintenance of such roads, right? The second one is आपके highways. Highways इंडिया का सबसे पुराना आप कह सकते हो the roadway system है। शेरशाह सूरी, the Mughal emperor, उसने जो है he had established the milestones, जगह जगह पर उसने मील के पत्थर रखे थे। And those milestones later on they were used as the highway के लिए हमारे मील होते हैं। आपने देखा होगा कि you're going somewhere तो बीच में लिखा होता है 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर करके। So it is that area. And in our country we are having NH1, NH मतलब जो आपके पेपर में आ सकता है NH1, NH2 आपका NH8 which is connecting Delhi to Bombay, NH7 जो आपका सबसे लॉन्गेस्ट है, जो आपका वाराणसी टू कन्याकुमारी जाता है। NH7 आपके ये इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज है, राइट? द हाईवे अथॉरिटी जो होती है सब जगह पे PWD, दैट इज पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इट इज CPWD आपका, ये इनके लिए जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल मतलब उनको बिछाना टाइम टू टाइम। अगर आप लोग कभी हाईवेज में जाओगे तो यू विल फाइंड देयर दे आर गिविंग द सर्विसेज आल्सो। नेक्स्ट आपका आता स्टेट, जो कि आपके कैपिटल से आपको जो है कनेक्ट करता है, दैट इज आपका PWD। स्टेट का जो PWD होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस। देन आपके आते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जो आपके छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट से टुवर्ड्स द कैपिटल, जैसे लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, तो जो वहां के डिस्ट्रिक्ट है वहां से लखनऊ के लिए जो रोड जाती है उनको हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहते हैं। अदर रोड्स यानी कि जो आपके रूरल एरियाज में है, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आपके सड़क योजना के अंदर आते हैं, ये आपके जो ग्राम से आपके सिटी को, फ्रॉम द विलेज टू द सिटी दे कनेक्टेड टू द टाउन्स टू द नियर बाय। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपका बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर योर बोर्ड्स आल्सो, मतलब देयर इज अ स्पेसिफिकली राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉर्डर रोड्स करके आता है, ठीक है? बॉर्डर रोड्स आपके जो आपके हाईएस्ट टेरेन, यहाँ अरुणाचल प्रदेश की तरफ आप चले जाओ, इधर आप जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाओ जहां माउंटेन्स है, एंड विच इज आल्सो इन द बॉर्डरिंग नेबरिंग कंट्रीज। जैसे आपका मेघालय जो है इट इज शेयरिंग इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश, तो वहां का जो रोड है डेफिनेटली ये वो एरियाज है विच आर टू, क्योंकि हमारा जो नीचे का एरिया है in the coastal area we are not sharing any borders, we are sharing our borders either in the आपके जम्मू कश्मीर वाले एरिया में है, उत्तराखंड वाले एरिया में है, देन इस तरफ आप जाते हो तो we are sharing with Bhutan, we are sharing with Bangladesh, तो ये जो roads हैं which are there on
on the bordering areas, on the tough terrain. सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो आपके टेरेन्स है वो आपके बॉर्डर रोड्स है. इनके लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इट वाज सेट अप इन 1960s and they are the one who are responsible. अगर ग्लेशियर्स आए या फिर लैंडस्लाइड्स हो, ये जो BRO मतलब की है they work so quickly, मतलब within minutes वो उन जगहों को खाली करते हैं. And it is only because of their efforts कि आज जो है ये एरिया जो आपके डिफिकल्ट टेरेन्स है वहां पर आपका जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इजी हो गया. नेशनल हाईवे तो बहुत सारे होगा. एनएच आपका यहाँ पर जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहां पर भी आपका ये भी है. ठीक है 1960. ठीक है. नाउ वी आर हैविंग मेनी. हम NH24 नहीं बोलते जो बैक साइड वाला. नो 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 ना 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 इट्स नॉट देयर. जो है वही आप. हाँ ठीक है. ये तो आपके सी रोड्स आर ले जितने आपके अभी जैसे आपका हमारे गाजियाबाद से मीरठ वाला जो रोड स्टार्ट हुआ है, आपका ये वाला जो कॉरिडोर स्टार्ट हुआ है विच इज कनेक्टिंग मीरठ टुवर्ड्स आपका मथुरा, आपके इधर से इस तरफ वाला जो कॉरिडोर है. सो दीस कॉरिडोर्स आर इंक्रीजिंग. सो वी कैन नॉट से दैट इट इज स्टैग्नेंट. ये भी नेशनल हाईवेज हैं. दे आर कनेक्टिंग ना. दे आर द कनेक्टिंग सिटीज. वी नॉर्मली छोटा मोटा एरिया का ये नेशनल हाईवे तो नहीं होता. NH24 इज नेशनल हाईवे आपका. NH20, NH24 and 34. There are many. चलिए. The next is आपका road density. It is there. Now road density क्या होता है? Per square kilometer roads. Per square kilometer में रोड, क्योंकि हर जगह पे हम रोड को ले नहीं कर सकते हैं and it is very difficult. तो एक पर्टिकुलर एरिया के एक स्क्वायर किलोमीटर के दरमियान हाउ मच मतलब कि कितने लेंथ में आप रोड को डाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज रोड डेंसिटी. वी हैव मेटल्ड एज वेल एज अनमेटल्ड रोड्स. डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड्स. मेटल रोड्स आपके होते हैं विच आर प्रॉपर, आपकी जो पक्की सड़क जिनको हम कहते हैं, यूजिंग द कोल, यूजिंग द स्टोन्स, हम जो ले करते हैं दोज आर आपके मेटल. वेयर अनमेटल्ड आर आपके जो मेटल रोड्स को हम ऑल वेदर रोड्स कहते हैं. मींस दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड इन द मॉनसून और इन द अदर वेदर कंडीशंस. Whereas आपके जो अनमेटल रोड्स हैं दे आर द रोड्स विच आर, जिसको हम कच्ची सड़क कहते हैं, which may be a temporary phase normally in the rural areas. आपकी मतलब की कच्ची सड़कें डाली जाती हैं. हाँ, यूजिंग द स्ट्रॉ हो सकता है. आपके दिल्ली के अंदर जो आपका यमुना पुल है उसके ऊपर जो है बोट्स को रखकर उल्टा बोट को कर दिया जाता है एंड बोट बिछा दिया जाता है. They are temporary. When the rain comes, that road is या तो उसको यूज नहीं करते या उसको रिमूव कर दिया जाता है. राइट. नाउ अगर आप देखो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आपका रोड डेंसिटी बहुत ही कम है. दिस इज बिकॉज दे आर इन द डिफिकल्ट टेरेन. ये क्वेश्चन आपका गिव रीजंस में आया था. एंड इफ यू गो टू केरला, if you go to the plain areas, वहां आपका road density ज्यादा है and this is because of the plain terrain. वो आपका plain है, वहां road बिछाना मतलब आसान भी है and moreover it doesn't get spoiled. Whereas आपका in the terrain region, in the mountainous region या फिर in the desert region, ये जो roads होते हैं they can be swayed off during the rainfall. Right? Next is railways. Indian Railway is one of the largest public sector in our country. आपके बॉक्स में लिखा हुआ है. It's one of the important. सबसे नीचे, हाँ, ठीक है, because it comes in the one marker question. Railways हमारे यहाँ जो first time जो हमारे यहाँ हुआ था, that was from Bombay to Thane. अभी तो हम थाने से अगर आप जाते हो बॉम्बे में तो थाने is part of Bombay. बट एक टाइम ऐसा था थाने वो सबर्ब मतलब पीछे मतलब आपका सब अर्बन एरिया, लेकिन उसके थ्रू जो सबसे पहला आपका जो रेलवे ट्रैक था वहां था. बट नाउ वी आर हैविंग एक्सट्रीमली गुड नेटवर्क ऑफ रोड रेलवेज. एंड रेलवेज जो है हमारे यहाँ इट इज कम्युनिकेटिंग मतलब कि इट इज हम लोगों को कम्यूट करने के लिए फॉर द
पैसेंजर्स फॉर द गुड्स। आपके सबसे ज्यादा जहां इंडस्ट्री होती है वहां से आपके पोर्ट्स वगैरह के लिए अपार्ट फ्रॉम द रोडवेज रेलवेज आपका यूज होता है, क्योंकि इट कैन कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ, बड़े बड़े जो आपकी मशीनें होती है उनको कैरी करता है। It also serves as the commuting services for the localites. It is also used for the pilgrimage. It is also used for commuting from one city to other city. हमारा on the basis of the gauge, आपका जो बॉक्स बना है, this can come in your one marker question, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा गॉज है। We are having गॉज बता रही हूँ, जो आपकी चौड़ाई होती है ऑफ द मतलब कि टू पैरेलल आपके जो ये कनेक्टर पटरी जाती है उसकी जो आपके बीच की चौड़ाई होती है उसके अकॉर्डिंग आपके डब्बे होते हैं। आपका मीटर गॉज है, ब्रॉड गॉज है और आपका नैरो गॉज है। मींस मीटर आपके जो ब्रॉड गॉजेस हैं वो आपके बड़े बड़े एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। द वन व्हिच कैरीज लाइक आपको यहां से यू हैव टू गो टू मुंबई। आपका जो देन आपका था नैरो गॉज और आपका था मीटर गॉज। जो छोटी छोटी गाड़ियां होती है लाइक आपके जो मेट्रो वगैरह ये आपकी मीटर गॉज के अंदर आती है, या फिर जो आपके उसमें पहाड़ों पर जाती है इनके गॉजेस हैं 1.5 आपके करके, एंड दिस हैज कम इन द पेपर, और ये आपके आया था एज द फिल इन द, मतलब कि आपको जो है फिल अप करना है, ऐसे लिखा हुआ 1.8 लिख के नैरो गॉज, फिर उसके बाद आपको दिया गया था और आपको लिखना था कौन सा गॉज है। yes exact right। now इंडिया के अंदर there are different transverse areas। आपके डेजर्ट्स में हम रेलवेज जाते हैं तो क्या होता है, ड्यू टू सैंडी वो आपका स्वे ऑफ होता है। इन द मार्शी एरियाज वो आपके जो है स्वे ऑफ, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन रेलवेज हैव कनेक्टेड ऑल द मेजर एरियाज। जहां पर आपके पहाड़ थे वहां पर भी दे हैव laid the what you say railway lines and they have made what हम लोग कहते हैं ना कि वहां पर जो है केव्स बना के वो लोग वहां से निकालते हैं। कोंकण रेलवे इज द बेस्ट एग्जांपल आपका, और कहा जाता है कि जो कोंकण रेलवे है दे हैव मेड रेलवे लाइंस इन दोस एरियाज जहां इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। लाइक आपका जो मूवी है चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस में आपने देखा होगा जो गाड़ी जाती है तो पीछे से आपका दूध सागर फॉल्स आता है। द दूध सागर फॉल्स जब नीचे गिरता है ना तो वहां पर क्या है कि पूरा का पूरा पानी होता है, लेकिन उस जगह पर जहां पर जल्दी से आपके रेलवे ट्रैक धंस सकते हैं वहां पर उन्होंने बना रखा है। अभी रिसेंटली उन्होंने बनाया है कटरा में, जम्मू कटरा जो आपका माता को जाता है वैष्णो देवी, वहां पर भी बना रखा है। एंड कल जो है दे हैव मेड अ लार्जेस्ट ब्रिज जो कि आई थिंक से भी बड़ा बता रहे हैं वो आपका बना है। या सो सच आपकी जो रेलवेज होती है, रेलवेज अगर हमारा स्ट्रॉन्ग होता है तो दे कैन कनेक्ट द डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन्स। बट स्टिल इवन दो रेलवेज हमारे लिए इतना कुछ करता है, तेजास एक्सप्रेस हमारे पास है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, राजधानी है, शताब्दी है, स्टिल हम लोग जो है वी डू नॉट केयर फॉर द रेलवेज। देयर आर मेनी लॉसेस, मतलब जो रेलवे होती है वो काफी लॉस देखती है। क्यों? लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब कर देते हैं, बैठकर उस पे जो है ब्लेड चलाएंगे। कई बार क्या करते हैं दे विल टेक द मतलब जो सामान होता है ना, जैसे टॉवल मिल गया उनको उठा के लेकर चले जाएंगे। समटाइम्स दे ट्रैवल विदाउट द टिकट एंड समटाइम्स दे विल इवन पुल द चेन विदाउट एनी रीजन। और ये जो सारी चीजें हैं दैट गिव्स लॉस टू द रेलवेज एंड वी मस्ट प्रोटेक्ट इट, राइट। नेक्स्ट आपका आता है पाइपलाइंस। पाइपलाइंस आज की डेट पर इन 2021 इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर नाउ गेटिंग देयर इवन देयर हाउसहोल्ड जो गैस है वो पाइपलाइन से मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका कमर्शियल यूज में स्लरी यानी कि आपका सेमी लिक्विड आपके जो गैसेस होते हैं उनको सेमी लिक्विड फॉर्म में जो है दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस। पहले क्या होता था, द ट्रक्स यूज्ड टू कैरी आपके खासकर जो आपके माउंटेनियस एरिया होती है वहां पर ट्रक्स को कैरी करना पड़ता था और वो टाइम लगता था। बट नाउ यूजिंग द पाइपलाइंस, आपके जो है मेजर पाइपलाइंस है आपके 1 2 3 इट इज देयर।
आपका एक आपका जो है इट इज फ्रॉम गुजरात, दूसरा आपका जो दिल्ली को देता है एंड तीसरा आपका जगदीशपुर वाला। These three pipelines जो है दे असम से आपका कानपुर कनेक्ट कर रहा है, देन आपका गुजरात से आपका पंजाब को कनेक्ट कर रहा है। हाँ, ये पाइपलाइंस आपकी बिकती हैं। मेरे रियल फूफा जी he was working in this आपका पाइपलाइन में करते थे एंड इट वाज ड्यू टू दिस आज हम लोग जो है जितनी भी आपकी रिफाइनरीज है लाइक मथुरा रिफाइनरी है वहां से आपकी स्लरी कैन बी कैरी टुवर्ड्स आपके कोई भी एरिया हो वहां तक पहुंच जाता है। सो दिस वे पाइपलाइंस आर ऑलरेडी इन फ्लो और पाइपलाइन जो है हम लोगों से ज्यादा कमर्शियल यूज में दे आर। आपके पेपर में जगदीशपुर जो आपका वाला जो क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन हैज टू आपके उत्तर प्रदेश, ये वाला क्वेश्चन आपके रिपीटेडली इट हैज कम इन योर पेपर, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका आ जाता है वाटरवेज। वाटरवेज सबसे चीपेस्ट मोस्ट मतलब कि इट इज कॉल्ड एज द मोस्ट इकोनॉमिकल, लेस पोल्यूशन एंड आपका जो है स्लो ट्रांसपोर्ट। It is but of course slow transport. Yet if you go to our history, आपका water transport सबसे पहला था even before the advent। अभी जो air वगैरह में ये तो अब है, railways आपके अब है, but water transport आपका तब भी use होता था। Water transport is used for the commuting purpose also and it is used for the industrial purpose also। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारा use होता है वो आपका commercial use के लिए होता है। It is used for the commercial purpose क्योंकि जो आपकी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, आपकी large number of export या import होता है, that cannot be transported using air क्योंकि air आपका costly होता है and it cannot also carry many मतलब कि काफी जो आपके बहुत बड़े बड़े यानी कि which are large and which can be heavy उनको carry नहीं करता है। So it is the road transport or water transport which helps in the transporting of such things. In our country, inland transport यानी कि आपके waterways हैं, 6 waterways भी हैं। आपका first 3 are very important। एक आपका NH1 जो आपका मतलब नेशनल वाटरवे जो आपका गंगा नदी पर है, सेकंड आपका ब्रह्मपुत्र पर है, थर्ड आपका जो है इट इज देयर इन द केरला साइड आपके, प्लस आपके अभी 3 और ऐड हुए हैं नेशनल वाटरवे। जैसे आपका कोई भी इंडस्ट्री है विच इज नियर द वाटरवे, जैसे हल्दिया पोर्ट आपका इन कलकत्ता, जो जूट इंडस्ट्रीज होती हैं यूजिंग द रिवर्स के थ्रू जो है these things are transported to the ports। आपके जो मेन पोर्ट्स होते हैं वहां तक ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड नेशनल वाटरवेज हमारे बहुत ज्यादा मतलब कि दे हैव बीन इंप्रूव। आपके गोदावरी नदी के ऊपर भी है, इनफैक्ट इट इज सेड कि गोदावरी नदी के ऊपर तो आपका पूरा का पूरा जो है शिप जाता है, प्रॉपर शिप जो है इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड। देन आपके दामोदर वहां पर इन द कोलकाता रीजन वहां पर भी है। In this manner, waterways are always that is inland waterways। अब outbound आपके waterways जो है आपके जो outbound है they are called as the ports। आपके sea ports and ये जो sea ports है they are आपके आते हैं in the map question या आपका 1 marker question, either in the map question or in the 1 marker question। In the map आपको 2 तरीके से याद करना है। आप एक तो you will be given some clue hint and you have to identify। secondly आप इसको जो है वेस्टर्न कॉरिडोर और ये आपका जो है ईस्टर्न कोस्ट इनमें है। हम स्टार्ट हमेशा वेस्टर्न से करते हैं, दैट विल हेल्प यू आउट। सबसे पहला आपका जो है यहाँ पर आपके आता है हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट जो है इट इज अ टाइडल पोर्ट, यहाँ हाई टाइड्स रहते हैं। इट वाज डेवलप्ड सून आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस क्योंकि पहले हम इसको शेयर कर रहे थे विद पाकिस्तान, सो टू ईज दैट उसको जो है खत्म करने के लिए हल्दिया पोर्ट वाज डेवलप्ड। Then इसके नीचे आप आते हो, दिस इज इन गुजरात। आप
पोर्ट विच इज द नेचुरल पोर्ट, एंड मुंबई पोर्ट के साथ में ही, मतलब बिल्कुल उसके साथ में ही मुंबई पोर्ट बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, उसको खत्म करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है उसको तैयार किया गया था। दोनों वहीं पर है, आसपास में है, बट नाउ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज नॉट देयर इन द मैप। देन आप उससे भी थोड़ा नीचे आ जाओगे, आपका गोवा। गोवा आपका जो है मारमगाओ पोर्ट, मारमगाओ पोर्ट, मारमगाओ, गोवा का उल्टा GAO मारमगाओ पोर्ट जो है इट इज एक्सपोर्टिंग द आयरन, आपका आयरन जो है प्रीमियर आयरन, ये इसको एक्सपोर्ट करता है। देन इसके थोड़े से नीचे आ जाओगे, आपका जो है न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये आपका कर्नाटका। मतलब अगर आपको, इफ यू आर वेरी वेरी वेल वर्स्ड विद द स्टेट्स, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, यू कैन लर्न। न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है यहाँ पर आपका कुद्रेमुख हिल्स है। कुद्रेमुख हिल्स आपका सबसे बड़ा, मतलब कि आयरन जो आपके आयरन फील्ड है, तो यहां से एंड यहां विजयनगर से आपके जो आयरन है ये एक्सपोर्ट हो। देन कम डाउन आपका एक्सट्रीम यहां पर कोच्चि। कोच्चि आपका जो है लेगून बनाता है, मीन जैसे ओपन करता है, लेगून को बनाता है विद अ नेचुरल हार्बर, ये आपका केरला। राइट नाउ कम, इधर आ जाओ, इधर से थोड़ा ऊपर आ गया, इधर यहां आपका जो है ट्यूटिकोरिन। ट्यूटिकोरिन जो है ये आपका जो है दिस इज इन तमिलनाडु। इट इज ऑल्सो हेल्पिंग आवर नेबर कंट्रीज, श्रीलंका एंड मालदीव जो है वो छोटी कंट्रीज है, वहां पोर्ट ज्यादा नहीं है, तो हम उनको पोर्ट फैसिलिटीज देते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम द पोर्ट फैसिलिटीज इन ट्यूटिकोरिन। फिर आप थोड़ा सा ऊपर आओगे, चेन्नई, यानी कि आपके तमिलनाडु में दो पोर्ट्स हैं, वन इज ट्यूटिकोरिन एंड चेन्नई। चेन्नई आपका सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। राइट देन आपका थोड़ा सा ऊपर आओगे, जहां यहां पर विशाखापट्टनम, जो विशाखापट्टनम है इट इज आल्सो कॉल्ड एज डीप लॉक्ड पोर्ट। सबसे ज्यादा पेपर में यही क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। डीप लॉक मतलब कि काफी गहरा है और अपने आप में लॉक है, मतलब बंद हो जाता है। मींस हम लोग जब पोर्ट को डेवलप करते हैं तो अंदर जाने के लिए हार्बर बनाते हैं, ये आपका जो है नेचुरली डेवलप हार्बर। देन आप आते हो ओडिशा, आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। फिर उससे थोड़ा ऊपर जाओगे तो ओडिशा, ओडिशा में आपका है पारादीप, इसको पारादीप भी कहते हैं, पारादीप भी कहते हैं। इट इज एक्सपोर्टिंग द आयरन टू जापान। देन आपका आ जाता है कोलकाता, जिसमें आपके दो पोर्ट्स हैं, वन इज हल्दिया, ये आपका रिवराइन पोर्ट है, यानी कि रिवर के ऊपर बना हुआ है हल्दिया, एंड उसके नीचे आपका कोलकाता पोर्ट है। वो आपका, ओ सॉरी, वो हल्दिया नहीं, सॉरी, मैंने बहुत बहुत बहुत, इट इज कॉल्ड एज, नहीं वो हल्दिया नहीं कहते, नहीं आई एम सॉरी, नहीं हल्दिया नहीं कहते, ये मेरे से गलती, कांडला, ये मेरे से गलती, नहीं कांडला, इट इज माय मिस्टेक, कांडला। हल्दिया आपका कोलकाता, हल्दिया इज अ रिवराइन, इट इज अ रिवराइन आइलैंड। नहीं, ये सारे आपके, ये सारे सिर्फ ये हल्दिया आपका रिवराइन है, ये सारे के सारे पोर्ट्स आर ऑन द सी। बेटा आप वाटरवेज में देख रहे हो, यू आर लुकिंग इनटू द नेशनल वाटर वे, नॉट इन द पोर्ट्स। ये रहा पोर्ट आपका, ये है सारा पोर्ट, यहाँ से स्टार्ट है पोर्ट, यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट है कांडला, फर्स्ट कांडला के बाद मुंबई, जवाहरलाल, yeah they are all international कैसे, they are port because they are on the coastal, नहीं on the sea, ठीक है। कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, देन मारमगाओ, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, ट्यूटिकोरिन, चेन्नई, आपका देन आपका विशाखापट्टनम, पारादीप एंड हल्दिया एंड कोलकाता। आपके जो तीन मेजर है ना, दैट इज आपका मुंबई एंड जवाहरलाल नेहरू दो है,
तमिलनाडु में चेन्नई एंड ट्यूटिकोरिन है एंड कोलकाता में हल्दिया एंड कोलकाता पोर्ट। बाकी आपके सब एक एक है। सो दिस वे आपका जो है इंटरनेशनल पोर्ट सिस्टम आता है और इस वाले में आपके जो है ईदर आपको लिखा जाएगा 3 मार्क में राइट द नेम ऑफ एनी 3 पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट या फिर ईस्टर्न कोस्ट। तो आप ये याद रखना और आपको पूरा लिखना है। 3 मार्क का मतलब आपको लिखना है मुंबई पोर्ट इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मतलब की नेशनल ऐसे लिखना है। देन मार लगाओ इट एक्सपोर्ट्स द आयरन करके एंड कभी और मैक्सिमम ये जो है इट कम्स ओनली इन द मैप में भी आता है। So waterways आपका हो चुका। नेक्स्ट आपका आता है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द what we call as most expensive transport, but yes due to privatization होने की वजह से many new airlines have entered जिससे कि आपका जो है एयरवेज to some extent आपका जो है it has come in the reach of the common man. Airways आपका जो है it helps specifically in the area जहां roadways and railways are difficult to lay down. Like आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अगर आप चाहते हो you don't have a direct connection, वहां पर roadways और जो airways है they help you out specifically in the northern and it is also कि वहां के लिए it is cheap also. But normally if you are traveling, if it is national or international, it is definitely costlier than what we call as other mode of transport. आपके एयरवेज में एयरलाइन जो है वो नेशनलाइज हो गया था। पहले हमारे जो एयरलाइन था वो टाटा के अंदर आता था, बट नाउ एयर इंडिया अभी तो फिलहाल के लिए इट इज देयर एज द नेशनल एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस आपका डोमेस्टिक ऑपरेशन है and Air India आपका international operate करता है। Now we are also having the private airlines which are entered into the market, making it more accessible. And helicopter services ये आपके when there is some disasters तब ये help करते हैं to provide the aid to help the people, उनको aid देने के लिए भी उन्हें help करने के लिए भी ये helicopter services आपके देते हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस जो कि आपका नेशनल है इट हेल्प्स इन प्रोक्यूरिंग द ऑयल इन द अरेबियन एरिया ONGC, वो ONGC को हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमारे एक तो आ जाता बेटा फेस टू फेस कम्युनिकेशन, देन आपका आता मास मीडिया, आपका पोस्टल आपका पहले we were having number of postal services, हमारे पास टेलीग्राम होता था। टेलीग्राम होता है a single card जब important होता है। आजकल तो हमारे पास instant messaging है, we are having the IM, लेकिन तब जो है it was not there। तो using the postal services the messages could be sent, then postcards यानी कि आपको छोटे मोटे कुछ लेटर्स लिखने हैं, इनलैंड लेटर्स जब आप लेटर प्रॉपर लिखते हो, एनवेलप्स, मैगजीन्स को भी हम लोग देखते हैं। वी आर हैविंग राजधानी सर्विसेज, वी आर हैविंग द मेट्रो सर्विसेज, यानी कि जो पोस्टल सर्विसेज होते हैं ये उन मतलब कि जब हम डब्बे बने होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्ट बॉक्स होते हैं, ब्लू ग्रीन रेड। इफ इट इज विद इन द सिटी हम रेड को यूज करते हैं, अगर हमें अर्जेंट में भेजना हम राजधानी में भेजते हैं क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसका जो स्टैम्प होता है वो यूज होता है। एंड इफ इट इज विद इन द मेट्रो सिटीज हम मेट्रो वाला यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर सेंडिंग द बल्क मटेरियल्स, सामान जो है मतलब कि आपकी जो बुक्स होती हैं वो आपके बहुत सारे एक साथ आपको कम्युनिकेशन करना बहुत सारी जगहों पे, उनके लिए मैगजीन्स, पीरियोडिकल सबके लिए यूज होता है। न्यूज़पेपर हमारा जो है इट इज कॉल्ड एज वन ऑफ द मास मीडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट मीडिया, क्योंकि न्यूज़पेपर कैन बी बॉट बाय एनीवन एंड इट इज आल्सो रीचिंग ऑल द एरियाज ऑफ आवर कंट्री। इंडिया के अंदर हिंदी न्यूज़पेपर इज द लार्जेस्ट वन प्रोड्यूस्ड। आप
सेकंड आपका इंग्लिश है, फिर आपका उर्दू है। ये आपके एमसीक्यूज में आते हैं रिगार्डिंग न्यूज़पेपर। नाउ टेलीविजन, दूरदर्शन आपका जो है नेशनल चैनल है, और अभी तो प्राइवेट चैनल्स है लेकिन हम नेशनल चैनल्स को लेते हैं। दे आर नॉट ओनली प्रोवाइडिंग द न्यूज एंटरटेनमेंट, लेकिन जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनको टाइम टू टाइम न्यूज बुलेटिन, आपके जो कृषि दर्शन, उसके थ्रू जो है फार्मर्स को भी इन्फॉर्म करते हैं। Yes, it is there. You go to the rural areas and find your. But पहले से अब हुआ ना, but it is one of national है हमारा. It is the national one, दूरदर्शन. We are having दूरदर्शन one. We are having regional. We are having private channels also. Private channels आपके paid होते हैं, whereas आपके जो दूरदर्शन है they are all free. आपकी free services होते हैं, right? Then we are also having the movies, documentary. आप जो नेशनल ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हो, दैट इज द डॉक्यूमेंट्री। बट डॉक्यूमेंट्री में क्या होता है, वी आर फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट। देन वी आर हैविंग द फीचर फिल्म्स जो हम देखते हैं, द मूवीज हमारे यहाँ पर। वी आर आल्सो हैविंग द सर्टिफिकेशन, बट आज की डेट पर सर्टिफिकेशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरीथिंग इज ओपन ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म। ठीक है। The next is आपका communication, mobile services, fax services, internet services. पहले क्या होता था, the people did not have the phones in their homes at their residence. अपने घर में phones नहीं होते थे, तो they used to, या तो उनके पास अगर फोन होता था वो डायलिंग सिस्टम था। Everyone was not having the STD facility. आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायल। आईएसडी, यस, ये आपके बुक में लिखा हुआ है, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल। ये आपका जो है अगर आपके उसमें फोन में होता था, यू कुड मेक अ कॉल आउटसाइड योर कंट्री, आउटसाइड योर स्टेट आल्सो। देन देयर वर एसटीडी बूथ्स होते थे जहां जाकर हम बाहर के लिए कॉल करते थे। बट नाउ विद internet services we are able to make national international calls at with our mobile itself. मोबाइल हमारा कंप्यूटर, आईटी सेक्टर यानी कि ईमेल, ये हमें जो है इंस्टेंट मैसेजिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दे आर आल्सो कनेक्टिंग अस फ्रॉम वन ज्योग्राफिकल एरिया टू अनदर। यहाँ पे लिखा हुआ कैसे लिखा हुआ ये, राइट। This is आपका लास्ट आपका है टूरिज्म। टूरिज्म से पहले हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। Most of the geographical areas are connected with trade, and this trade further correlates us with the international trades. इंटरनेशनल ट्रेड्स में आपके अलग अलग है। यू कैन एक्सपोर्ट, यानी कि आप यहाँ से बाहर सामान भेज सकते हो। यू कैन इंपोर्ट, अगर आपका ऐसा कोई मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ बाहर से सामान लाकर देन उसको असेंबल करके भेज रहे हो, या वहां से खरीद कर भेज रहे हो, या कॉन्ट्राक्ट, ये आपके उसमें नहीं है, राइट नाउ नहीं है, मींस आप एक कंट्री से खरीद कर दूसरी कंट्री में बेचते हो। नहीं, कम्युनिकेशन थोड़ी है, वी हैव कम टू द इंटरनेशनल ट्रेड। कम्युनिकेशन इज ओवर। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंट्रापोर्ट, किसी भी कंट्री का बैरोमीटर होता है उसका इंटरनेशनल ट्रेड। आपके पेपर्स में लिखा हुआ है। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, मतलब इफ वी आर सेंडिंग आवर मटेरियल्स आउटसाइड आवर कंट्री एंड हम इंपोर्ट कम लेते हैं, तो देन इट इज अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्यों? आप एक्सपोर्ट करोगे, यू अर्न द रेवेन्यू। आप इंपोर्ट करते हो, यू हैव टू स्पेंड द मनी। तो अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, अगर हमारा इंपोर्ट कम है, तो रेवेन्यू हमारा ज्यादा होगा। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड हमारा जो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड था, ये बहुत ही मतलब कि खराब था, बिकॉज हमारे इंपोर्ट ज्यादा थे एंड एक्सपोर्ट्स वर लेस। बट नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग एंड इंडिया इज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच वी एक्सपोर्ट। हमारे पास हर वो चीज है, लाइक अगर आप केरला का लेते हो तो स्पाइसेस आर एक्सपोर्टेड, बासमती राइस इज एक्सपोर्टेड, पर्ल्स आर एक्सपोर्टेड आपके, देन कॉटन क्लोथ्स आर एक्सपोर्टेड, एंड यस वी आर आल्सो इंपोर्टिंग सम
chemicals, some medicines, some of the petrochemicals, हमारा जो पेट्रोलियम है वो हमारा import है, natural gas हमारा import है, तो there should be a favorable balance, right? Last topic हमारा आता है that is आपका tourism. See, India is a land of diverse culture. कश्मीर आप जाते हो, beauty. Then you come to Punjab, again culture. If you come to Rajasthan, it's full of cultural beauty. Then if you go to Uttar Pradesh, कहीं आपके जो है temples वगैरह है. Assam and North East आपका जो है mountain beauty. Then if you come to southern area में जाते हो temples, आपके महाराष्ट्र वगैरह में जाते हो coastal area. India is having a large potential of tourism. Yet tourism has not been developed to that extent. According to Niti Aayog, जो आपका पहले प्लानिंग कमीशन था, according to Niti Aayog, around 35 to 40 lakh जॉब हम कर सकते हैं if tourism is promoted. अगर हम टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, यानी कि उस जगह को आप देखो, थाईलैंड, वियतनाम, they don't have any resources. One of the आप कह सकते हो सबसे poorest countries में से एक था. Today Thailand is there. हम थाईलैंड का नाम इसलिए जानते हैं because they had developed their tourism. And इसी तरीके से अगर हम टूरिज्म को प्रमोट करते हैं in different ways, अब टूरिज्म को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं? मेडिसिन टूरिज्म, जहां हम मेडिकल स्टूडेंट्स को लेकर आते हैं, जैसे आपके जो बॉटनी के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें. देन आपका इको टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, आपका पिलग्रिमेज, हेरिटेज, आपके जो हेरिटेज वाले जो एरियाज हैं, जैसे आपका वो एक ट्रेन है जो कि वीलॉन पैलेस, जो आपका पूरा राजस्थान घुमाता है, सारे हेरिटेज एरियाज को कवर करता है. देन आपके जो है वी आर हैविंग द एडवेंचर टूरिज्म, देन बिजनेस टूरिज्म. अगर हम इस टूरिज्म को डेवलप करें, देन not only that we will be promoting the country, क्योंकि tourism जो है वो exchange करता है culture को. When the people come, they not only see that place, वो वहाँ के cultural items को भी लेते हैं, वहाँ के जो local cuisines होते हैं उन्हें भी खाते हैं. तो हम अपने local जो cuisines हैं, local जो culture है उसको promote करते हैं. जो local artisans है वहाँ पर weavers, artisans, traders, ये भी उनको भी जो है जॉब्स मिल जाते हैं. एंड इन दिस वे हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है, साथ में एक्सचेंज ऑफ द कल्चर भी चलता है. इन ओवरऑल वी कैन से इन अ कंट्री अगर ट्रांसपोर्ट, देन द कम्युनिकेशन सिस्टम एंड टूरिज्म, अगर इसको ज्योग्राफिकल लोकेशंस के अकॉर्डिंग इफ वी आर एबल टू डेवलप देम, providing better network, it will in the overall it will help in improving the index of the country, right? This is called as lifelines of national economy, right?